Yes, brother. Over to Brother Sam. Yeah, praise the Lord. I'm very happy to share God's word with you. परमेश्वर की स्तुति हो। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आप सबके साथ परमेश्वर के वचन को बांट सकता हूँ। I want to share on a topic which is very close to my heart. और मैं एक ऐसे विषय से बांटना चाहता हूँ जो मेरे हृदय के बहुत ही निकट है। That is the importance of fellowship with Jesus Christ. और वो है यीशु मसीह के साथ संगति की आवश्यकता, महत्व। I was thinking about that for many days, and it was, I was thinking that it is the fellowship with Jesus which makes each of us vibrant and enthusiastic Christians. और कई दिनों तक मैं इस विषय में सोच रहा था, और मैं सोच रहा था यीशु मसीह के साथ जो हमारी संगति है वही हमें एक जीवित और बहुत ही उत्साही मसीही बनाता है। See, if we try to follow the rules of the Bible, if we go by what can be called as a rule book, that will only produce cold and lukewarm Christians. अगर हम बाइबल के केवल नियमों से ही जाए, और अगर बाइबल हमारे लिए केवल एक नियमों की किताब बन जाएगी, फिर हम बहुत ही ठंडे और सरगर्म मसीही होंगे। But what makes us really enthusiastic Christians is when that Holy Spirit flows to us continuously, and we live in that constant fellowship with the Father, with Jesus Christ, and with the Holy Spirit. और अगर हमने ये नहीं किया तो हम बहुत ठंडे और गुनगुने होंगे, पर जब हम परमेश्वर पिता और पवित्र आत्मा के साथ निरंतर संगति में बनते हैं तो वो है जो हमें सरगर्म बनाता है। First of all, I want to turn to this portion in 1 John chapter 1 verse 1 onwards. पहला यूहन्ना पहला अध्याय 1 वचन से मैं पढ़ना चाहूंगा। We can go very slowly. It's such a precious portion. और हम बहुत ही धीरे से इसे पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत ही एक मूल्यवान बहुमूल्य ऐसे वचन है। Here we see what was from the beginning. यहाँ हम देखते हैं जो आदि से था। See, just think of what was. See, even before the world was founded, before Adam and Eve was created, even before angels were created, even before Lucifer was there. और सोचकर देखिए आदि में क्या था। इस संसार को बनाने से पहले, आदम और हवा के निर्माण से पहले, लूसीफर से भी पहले और स्वर्गदूतों के निर्माण से भी पहले। What was there right in the beginning? और बिल्कुल शुरुआत में, बिल्कुल आरंभ में क्या था? We can say there was God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. और हम कह सकते हैं परमेश्वर जो पिता, परमेश्वर जो पुत्र और परमेश्वर जो पवित्र आत्मा, वे तीनों थे। And we can say in among them there was such an intense fellowship. और हम कह सकते हैं कि उन तीनों के बीच में ऐसी तीव्र और ऐसी अच्छी एक संगति थी। And there was such a love, such a joy, such, we can say, abundance of life in among these three. और उनके बीच में ऐसा प्रेम था, ऐसा आनंद था, और जीवन ऐसे विपुलता से, ऐसे बहुतायत से था इन तीनों के बीच में। And we can see what we have heard. That is that kind of a fellowship we have heard. John is telling. और फिर हम पढ़ सकते हैं कि यूहन्ना कहता है जिसे हमने सुना है, और वो कह रहा है कि इस प्रकार के संगति के विषय में हमने सुना है। And then he says what we have seen. और फिर वो कहता है जिसे अपनी आंखों से हमने देखा है। John and other apostles saw that that is the way Jesus lived. और यूहन्ना और अन्य प्रेरितों ने देखा कि यीशु इसी प्रकार जीता था। See, Jesus said that I can do nothing of my own initiative. और यीशु मसीह ने कहा मैं अपने आप से, अपनी पहल लेकर मैं कुछ नहीं कर सकता। Son can do nothing of himself. पुत्र अपने आप से कुछ नहीं कर सकता। Unless it is something he sees the Father doing. जब तक कि वो ऐसा कुछ ना हो जो वो पिता को करते हुए ना देखता हो। And whatever the Father is doing, the Son also does in the same manner. और जब पिता जो कुछ करता है उसी को पुत्र भी वैसे ही करता है। They saw in the life of Jesus that he was all the time in fellowship with the Father, God the Father. और उन्होंने यीशु के जीवन में देखा कि उसके जीवन भर वो निरंतर
परमेश्वर जो पिता उसके संगति में बना रहा। They saw that Jesus was quite often going maybe in the nights to the hills or the forests, etc., and spending time with God the Father. उन्होंने देखा कि कई बार यीशु मसीह रात में अकेला जाकर जंगल में जाता था और परमेश्वर के साथ समय बिताया, अपने पिता के साथ समय बिताया करता था। And he was hearing the Father all the time. और वो निरंतर पिता को सुनता था। And whatever the Father was telling, he was next day coming and telling to the people. और जो कुछ पिता उससे कहता था अगले दिन वो आकर लोगों से कहता था। And we know that when he was about to go to the cross, the thing that was most difficult was to cut off that fellowship with the Father just for 3 hours. और हम जानते हैं कि जब वो क्रूस पर जाने ही वाला था तो सबसे कठिन बात उसके लिए यही थी कि उस संगति से उसको काट देना, उससे अलग होना केवल 3 घंटों के लिए, वो सबसे कठिन बात थी। And we can see, continue to read what we have looked at and touched with our hands. That means John is saying that this kind of a life and how much he valued fellowship with the Father, we have seen that very clearly. और आगे वो कहता है जिसे अपनी आंखों से हमने देखा वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ, मतलब वो कह रहा है कि इस प्रकार का जीवन हमने बहुत ही साफ स्पष्टता से देखा है। And this is all concerning word of life. Word of life is another name for Jesus Christ. और ये सब कुछ हिंदी में जैसे शुरुआत में लिखा है वो जीवन के वचन के विषय में बता रहा है, और जीवन का वचन मतलब यीशु मसीह। And verse 2, the life was manifested. और दूसरा वचन कहता है ये जीवन प्रकट हुआ। We can see how the life was manifested. और हम देख सकते हैं कि कैसे ये जीवन प्रकट हुआ। It was closely connected with how he was living in that fellowship with the Father, which resulted in the life of God being manifested in Jesus Christ. और इसका बहुत नजदीकी संबंध उससे था कि कैसे वो अपने पिता के साथ नजदीकी संबंध में बनाए रखता था, और ये बात इसमें प्रकट होती थी कि उसका जीवन कैसा था। In John chapter 1 and verse 3, we know that verse. In him was life, and life was the light of men. और यूहन्ना पहला अध्याय 3 वचन के हम उस वचन को जानते हैं जहां लिखा है कि उसमें ज्योति थी, और वो जो ज्योति थी मनुष्यों की, उसमें जीवन था, और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति थी। हिंदी में चौथा। What Jesus was telling is, it was not his words which is not the light to the men. It is his life which was coming from this deep fellowship with the Father, which was the light to men. और यीशु मसीह कह रहा था कि उसके जो शब्द है वे लोगों के लिए ज्योति नहीं थी, बल्कि उसका जो जीवन उसके पिता के साथ एक गहरी संगति से निकल रहा था, वो लोगों के लिए ज्योति थी। Maybe we can put a hand here and just go to that verse, because there we can see a difference between Old Testament ministry and New Testament ministry. और शायद हम यहाँ अपनी उंगली रख के उस वचन को जाकर देखेंगे, क्योंकि उसमें हम पुराने नियम की सेवकाई और नए नियम की सेवकाई के अंतर को देखते हैं। We can see just a few verses down what is written about John the Baptist. हम देख सकते हैं कुछ ही वचनों, अगर हम नीचे जाते हैं तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में क्या लिखा है। We can see that verse 6 it is written, there came a man sent from God whose name was John. He came as a witness to testify about the light, so that they all might believe through him. और 6वां वचन कहता है एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से आ उपस्थित हुआ जिसका नाम यूहन्ना था। 7वां वचन, वो गवाही देने आया कि ज्योति की गवाही दे ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाए। And we just see verse 8. He was not the light, but he came to testify about the light. और देखिए 8वां वचन क्या कहता है, वो आप तो वो ज्योति न था परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। So in the Old Testament, John was a representative of the Old Testament. What was happening? They were testifying or witnessing or sharing about the light. और पुराने नियम में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ये पुराने नियम का एक प्रतीक था। पुराने नियम में वो लोग गवाही देते थे, बांटते थे ज्योति के विषय में। But how was Jesus? His life was the light of men. पर यीशु कैसा था? यीशु का अपना जीवन मनुष्यों के लिए ज्योति थी। So we all should be ministers of the new covenant. How our life should be? My life should be the light of men. और हम सबको नई वाचा के सेवक होना है, तो मेरा जीवन कैसा होना चाहिए? मेरा जीवन लोगों के लिए ज्योति बननी चाहिए। That is a tremendous challenge.
ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। It is not by words that should be the light. It should be my life, which is the light of men. वो मेरे शब्द नहीं होने चाहिए जो लोगों के लिए ज्योति बननी चाहिए, पर मेरा जीवन ही लोगों के लिए ज्योति बननी चाहिए। And here is written, light shines in the darkness, verse 4, verse 5, and darkness did not overpower it. और यूहन्ना 1:5 में लिखा है, ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया। और इंग्लिश में लिखा है और हिंदी में भी नीचे लिखा है कि अंधकार उस पर जयवंत न हुआ। Have you ever seen darkness overpowering light? क्या आपने कभी अंधकार को ज्योति पर जीतते हुए या उससे ज्यादा उस पर हावी होते हुए देखा है? It is impossible. ये असंभव है। Just imagine a 0-watt bulb is burning. सोचकर देखिए, केवल एक 0 वॉट बल्ब ही जल रहा होगा तो। Hello? यस यस ब्रदर। Yes, brother, can you hear us? Yeah, I can hear you, brother. Yes, we can hear you. Yeah, so just imagine that a 0-watt bulb is burning. और सोचकर देखिए कि एक 0 वॉट का बल्ब जल रहा है। That light is quite dim, but still it removes the darkness. और वो जो ज्योति है उसकी वो इतने कम मात्रा में है, कितनी धुंधली है, उसके बावजूद वो अंधकार को भगाती है। Still darkness cannot overpower the light. और फिर भी अंधकार जो है वो ज्योति पर हावी नहीं हो सकता। We can come back to 1 John chapter 1 verse 2. Life was manifested, and that life was manifested as a result of the fellowship which Jesus had with the Father. और हम फिर एक बार पहला यूहन्ना 1:2 में आएंगे, जहां लिखा है, ये जीवन प्रकट हुआ और वो जीवन इसके परिणाम स्वरूप था कि यीशु मसीह की अपने पिता के साथ क्या संगति थी, उसके परिणाम स्वरूप वो जीवन प्रकट हुआ। And it's written, we have seen and testify and proclaim to you the eternal life, which was with the Father and manifested to us. और फिर वो कहता है, और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। We have heard this word eternal life so many times in the church, Brother Zach telling. और हमने अनंत जीवन इस शब्द को कई बार चर्च में सुना है जब भाई जैक इसे बताते हैं। It is not an endless life. ये बिना अंत का जीवन नहीं है। It refers to a quality of life. वो उसका मतलब है जीवन की गुणवत्ता से। In other words, it is the life of God Himself to come to an intimate relationship with God the Father and Jesus Christ, as we see in John chapter 17 verse 3. दूसरे शब्दों में ये खुद परमेश्वर के जीवन के विषय में है, और ये कि हम परमेश्वर पिता और यीशु मसीह के साथ एक नजदीकी संबंध में आए, जैसे यूहन्ना 17:3 में लिखा है। And we can see in verse 3, we have seen and heard and proclaimed to you, so that you also may have fellowship with us. Indeed, our fellowship is with the Father and with His Son Jesus Christ. और तीसरा वचन कहता है, जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो, और हमारी ये सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। See, we have to always remember the fellowship with the Father and Jesus Christ come first. और हमें निरंतर ये याद रखना है कि पिता के साथ संगति और यीशु मसीह के साथ संगति ये हमेशा पहले स्थान पर होनी चाहिए। As we become closer and closer to the Father and Jesus Christ, as we increase in that fellowship, you know what happens? Automatically, we increase in fellowship with one another also. जितना अधिक और अधिक हम पिता और यीशु मसीह के साथ संगति में बढ़ते जाते हैं, उसके नजदीक आते जाते हैं, उसी के साथ ये भी होता है कि हम एक दूसरे के साथ भी संगति में बढ़ने लगते हैं। I think all of you have seen cycle spokes. और मैं सोचता हूँ कि आप में से हर एक ने साइकिल की जो वो तार होती है, स्पोक्स होते हैं, उसे देखा होगा। See, just think of two spokes which are very close to the tire. They are little apart, far apart. Brother, can you repeat? Two spokes. Just take two spokes in a cycle. When they are close to the tire, they are quite apart from each other.
और जब वो साइकिल के जो पहिए के जो तार होते हैं, वो जो स्पोक्स होते हैं, जब वे टायर के बहुत नजदीक होते हैं तब वे एक दूसरे से दूर होते हैं। But as they come closer to the center, they automatically come close to each other also. पर उस पहिए के बिल्कुल बीचों बीच वो जो सेंटर है, उसके जैसे जैसे वो स्पोक्स नजदीक आते जाते हैं, वे एक दूसरे के भी नजदीक आते हैं। Yeah, so as they come closer to the center, they come closer to one another also. और जैसे जैसे वो बीच के या सेंटर के नजदीक आते हैं, वे एक दूसरे के भी नजदीक आते हैं। See, it is useless if I just try to sit with a brother. I think that I speak with him or fellowship with him for a long time, I get closer. No, that is not the way we get closer. We get closer as we try to go closer to Jesus. We automatically get closer to one another also. और ये व्यर्थ होगा बिल्कुल कि मैं किसी भाई के साथ बैठूं और काफी लंबे समय तक मैं उससे बातचीत करूं, संगति करूं, और मुझे लगता है कि उससे मैं संगति बनाऊंगा। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब हम परमेश्वर के नजदीक जाएंगे तो, और यीशु के नजदीक जाएंगे, तो अपने आप हम एक दूसरे के भी नजदीक आने लगेंगे। That is the secret of husband-wife relationship also. और पति पत्नी के बीच के रिश्ते का भी यही रहस्य है। I have seen very clearly, as I get closer to Jesus, I get closer to my wife also. और मैंने ये बिल्कुल साफ साफ देखा है कि जैसे मैं यीशु के नजदीक जाता हूँ, मैं अपने पत्नी के भी नजदीक जाता हूँ। We can see in verse 4, these things we write so that our joy may be made complete. और चौथे वचन में हम देखते हैं, और ये बातें हम इसलिए लिखते हैं कि हमारा आनंद पूरा हो जाए। I want to really challenge you, all my young brothers and sisters. So many young people are after enjoyment. और मैं आप सबको चुनौती देना चाहता हूँ, मेरे जो प्रिय जवान भाई और बहनें हैं, कई जवान लोग जो है वो केवल मनोरंजन या आनंद उठाने के पीछे हैं। See, they try to get enjoyment through nice food. They try to get enjoyment through vacations. They try to get enjoyment through friendship. और वे मनोरंजन जो है या मजा जो है वो अच्छे खाने से लेने की कोशिश करते हैं, या छुट्टियों मनाने जाने से, या अपने दोस्तों के द्वारा वो मजा उठाना चाहते हैं या आनंद उठाना चाहते हैं। But the honest fact is nothing will satisfy us. पर बिल्कुल वास्तविक सत्य ये है कि इनमें से कुछ भी हमें तृप्त नहीं करेगा। But the thing that will really make our joy full is when we learn this fellowship with Father and Son Jesus Christ and with one another. पर वो बात जो हमारे आनंद को पूरा कर देगी, भरपूर कर देगी, वो ये है कि जब हम पिता के साथ और पुत्र के साथ ये संगति में आ जाए और एक दूसरे के साथ संगति में आ जाए। I want to tell you that please take this very seriously. If you try enjoyment anywhere else, it is a waste of time. मैं आपको कहना चाहता हूं कि इन बातों को कृपया बहुत गंभीरता से लें, क्योंकि आप अगर कहीं भी और आनंद उठाने का, मजा उठाने का कोशिश करोगे तो वो बिल्कुल आपका समय व्यर्थ गंवाने जैसा है। And we see John is telling how we can come to this relationship. और हम देखते हैं कि यूहन्ना हमें ये भी बताता है कि कैसे हमें संगति में प्रवेश कर सकते हैं। Verse 5, this is the message we have heard from him and announced to you that God is light, in him there is no darkness. 5वां वचन, जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वो ये है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। And verse 6, if we say we have fellowship with him and walk in darkness, we lie and do not practice the truth. और 6वां वचन, यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। There we see the most important secret of fellowship with the Father, with Jesus Christ and with one another. और वहां हम देखते हैं सबसे मुख्य रहस्य संगति का पिता के साथ, पुत्र के साथ और पवित्र आत्मा के साथ, and with one another. और एक दूसरे के साथ। The most important thing is, in between I and God, there should not be anything, any darkness. सबसे महत्वपूर्ण बात है, मेरे और परमेश्वर के बीच में और कुछ नहीं होना चाहिए, कोई भी अंधकार नहीं होना चाहिए। Say, if I keep little unforgiveness or little coolness to one brother, if I'm not ready to, if I'm keeping little pride in my heart, or unwanted friendship, or it can be whatever, world or money, anything comes in between I and Jesus, there is no fellowship with the Father, with
Jesus Christ and with one another. अगर मैं अपने हृदय में लोगों को क्षमा नहीं कर रहा, या किसी के प्रति मैं ठंडा हूं, या मेरे हृदय में ऐसा घमंड है, या कोई ऐसी मेरी दोस्ती है जिसे मैं छोड़ना नहीं चाहता, चाहे वो संसार हो चाहे वो पैसा हो, अगर मेरी इन सारी बातों को मैं नहीं छोड़ना चाहता तो मेरी पिता के साथ संगति नहीं होगी, यीशु के साथ नहीं होगी, और एक दूसरे के साथ भी नहीं होगी। Yes, brother, go ahead. So we see here in verse 7, if we walk in the light as he himself is in the light, we have fellowship with one another. और 7वें वचन में हम पढ़ते हैं, पर यदि जैसा वो ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं। What is the meaning fellowship? That means first of all we have got fellowship with God and also with one another. और सहभागिता का क्या मतलब है? पहले तो हमारे परमेश्वर के साथ सहभागिता है और एक दूसरे के साथ भी। What is the meaning of walking in the light? ज्योति में चलने का क्या मतलब है? Walking in truthfulness. सच्चाई में चलने का मतलब, walking in honesty. ईमानदारी में चलना, honestly admitting every sin, confessing, forsaking, making sure that nothing is there between I and Jesus. ईमानदारी से हर एक पाप को मान लेना, उसका अंगीकार करना और उसे त्याग देना, और उसको मसीह के सामने अंगीकार करना कि इसको निश्चित करना कि यीशु और मेरे बीच में और कुछ नहीं है। If I've got something against my wife or another person in the church or whatever it is, and if the Holy Spirit says, go and ask forgiveness, quickly ask, go and ask forgiveness. Humble yourself, humble myself, and should be ready to ask forgiveness to anybody. और मेरे पत्नी के खिलाफ या कलीसिया में किसी भाई के खिलाफ अगर मेरे हृदय में कुछ, और पवित्र आत्मा अगर मुझसे कहे कि जाकर उससे माफी मांग, तो मुझे तुरंत जाना है, अपने आप को नम्र करना है और मुझे उस स्थान पर आना है जहां मैं किसी से भी माफी मांगने के लिए तैयार होता हूं। If I say that is very difficult, I cannot ask forgiveness. I cannot ask forgiveness to my husband. I cannot ask forgiveness to my wife. I'll tell you, this life is impossible. अगर मैं कहूंगा कि नहीं, मैं तो माफी नहीं मांग सकता, ये तो बहुत कठिन है, मैं अपने पति से माफी नहीं मांग सकता, अपने पत्नी से माफी नहीं मांग सकता, फिर मैं आपको बताना चाहता हूं ये जीवन बिल्कुल असंभव है। We'll experience darkness only. हम केवल अंधकार का ही अनुभव करेंगे। Our relationship with Jesus is cut off. यीशु के साथ हमारी जो संगति है वो कट जाती है। What happens is there will be hell in my heart and in my home. और उसके बजाय ये होगा कि मेरे हृदय में और मेरे घर में नरक होगा। We can see here, if we walk in the light as he is in the light, then we have fellowship. और यहाँ हम देखते हैं कि यदि हम जैसा वो ज्योति में है वैसे हम भी ज्योति में चले तो हमारी एक दूसरे के साथ सहभागिता है। And the blood of Jesus cleanses from all sin. और यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। But if we say we have no sin, we are deceiving ourselves. Truth is not. 8वां वचन, यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। It's possible that we may fall into many areas. ये संभव है कि हम कई क्षेत्रों में गिर सकते हैं। Maybe in my talk, I may have a hard tone. Maybe in my thoughts, I may have a wrong thought. But most important thing is quickly confess it, forsake it, come back into relationship with Jesus. शायद मेरे बातचीत में मैं बहुत कठोर स्वर अपनाता हूँ, शायद मेरे विचारों में मेरे गलत विचार हो, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, जरूरी ये है कि मैं तुरंत उसको यीशु के सामने अंगीकार करता हूँ, उसे छोड़ देता हूँ और वापस यीशु के साथ संगति को पुनर्स्थापित करता हूँ। That is why verse 9 is a very, very important verse in all of our life. और इसलिए 9वां जो वचन है वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण वचन है हमारे पूरे जीवन के लिए। If we confess our sin, confess means admit, Lord, I am at fault. I agree. I am the person who is at fault. यदि हम अपने पापों को मान ले, उसका मतलब हम अंगीकार करते हैं, हम कहते हैं कि प्रभु हाँ मैं मानता हूँ, गलती मेरी है, मैं इससे सहमत हूँ कि दोष मेरा था। I want to tell you, in husband-wife relationship, if we expect the other person to get right, nothing is going to happen in our life. मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि पति पत्नी के रिश्ते में अगर हम चाहेंगे कि सामने वाला व्यक्ति आकर बातों को सही करे तो कुछ भी हमारे जीवन में सही नहीं होगा। I've seen so many times, Lord, I take the responsibility. I humble myself. And then everything becomes so easy and so wonderful.
और मैंने कई बार देखा है, जब मैं कहता हूँ प्रभु मैं खुद जिम्मेदारी उठाता हूँ, मैं अपने आप को नम्र लेता हूँ, तो फिर सारी चीजें इतनी आसान, इतनी अद्भुत हो जाती है। When I say, Lord, I admit the sin, I take the blame on myself. जब मैं कहता हूँ प्रभु मैं अपने पाप को मान लेता हूँ, मैं दोष उठाता हूँ, What is written is, God is faithful to forgive our sin and to cleanse us from all unrighteousness. और फिर लिखा है तो वो हमारे मतलब परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। I want to tell you, this is a wonderful life to live. मैं आपको बताना चाहता हूँ ये एक अद्भुत जीवन है जिसे हम जी सकते हैं। See, many times we may see, say, a small child falling. कई बार शायद हम एक छोटे बच्चे को गिरते हुए देखते हैं, But if the child is lying down there, it will never learn to walk. पर अगर वो बच्चा वैसे ही जमीन पर लेटा हुआ रहेगा तो वो कभी चलना नहीं सीखेगा। But the thing that makes that child walk is, as soon as the child falls, it gets up. पर वो बच्चा केवल इसी वजह से चल पाता है क्योंकि जैसे ही वो गिरता है वो तुरंत उठ जाता है। See, as it gets up, something happens in his body. और जब वो वापस उठ खड़ा होता है तो उसके शरीर में कुछ हो रहा होता है। The muscles in its leg, muscles in its hand, muscles in its stomach, muscles in the heart, all these get strengthened. और उसके पैर के मांसपेशियां, उसके हाथ के, उसके हृदय के और उसके पेट के जो मांसपेशियां है, ये सारे मजबूत होते हैं, बलवंत होते जाते हैं। And maybe in 6 months or 8 months time, the child is walking wonderfully. और शायद आने वाले 6 महीने या 8 महीने के समय में वो बच्चा बिल्कुल सही सही अच्छे से चल पाता है। But imagine a child falls and it lies down there till the whole day. That child will never walk in his life. और सोचकर देखिए कि कोई बच्चा गिरता है और दिन भर वही पड़ा रहता है, वो अपने पूरे जीवन में वो बच्चा कभी चलना नहीं सीखेगा। See, what is most important, I want to tell you this with underlining. What is most important in life is, when we fall, let's get up so quickly and continue walking. और हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात, मैं इसको बहुत इस पर जोर देकर कहना चाहता हूं कि सबसे महत्वपूर्ण बात, जब कभी हम गिरते हैं हम तुरंत उठ जाएं और चलना जारी रखें। See, some people, I want to tell you that what they do is they fall and they speak and they rudely speak everything, and night they have got a prayer, Lord, whatever sins I have done today, please forgive me. I want to tell you, such people will never come to a life of fellowship with the Father. और कुछ लोग ऐसा करते हैं कि वो गिर जाते हैं, वो शायद कठोरता से बात करते हैं और दिन में कुछ गलत करते हैं और फिर रात में वो प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जो कुछ मैंने आज दिन में गलत किया, जो कोई मेरा पाप था, कृपया मुझे क्षमा कीजिए। ऐसे लोग जो है कभी पिता के साथ संगति में नहीं आएंगे। It's just like the child who falls maybe in the morning and till evening it just lies down on the floor. Maybe night it tries to get up. I'll tell you that child will never walk in his life. ये बिल्कुल उस बच्चे के समान है जो सुबह गिर जाता है चलते चलते और वो दिन भर पड़ा रहता है और शायद रात में वो उठता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ वो बच्चा अपने जीवन भर नहीं चलना सीखेगा। Child who will walk is a child who quickly gets up. Maybe in another 2 minutes again it may fall. Again it gets up quickly. That is the life we have to learn to live. वही बच्चा चलना सीखता है जो गिरने पर तुरंत उठ खड़ा होता है और शायद उठ के वापस चलने के बाद 2 मिनट बाद वो वापस गिरता है पर वापस वो उठ खड़ा होता है। और इस जीवन को हमें जीना, ऐसा जीवन हमें जीना है। Now we'll see another portion in Revelation chapter 3. और प्रकाशित वाक्य इसके 3 अध्याय में हम कुछ वचन देखेंगे। You can see a church here, Laodicean church. और यहाँ हम कलीसिया के विषय में देखते हैं, लौदीकिया की कलीसिया। We know that this is the church which is the worst church of all these 7 churches. और हम जानते हैं कि ये वो कलीसिया है जो इन सारे 7 कलीसियाओं में से सबसे बदतर, सबसे बुरी कलीसिया थी। We can see here chapter 3 verse 15, because you are lukewarm, neither hot or cold, what Jesus said, I will spit you out of my mouth. और 3 अध्याय में 15-16 से वचन में हम देखते हैं कि यीशु कहता है, क्योंकि तू ना तो ठंडा है ना गर्म है, मैं अपने मुंह से तुझे उगलने पर हूं। See, just imagine a person or a church who is about to be spat out of Jesus' mouth. और कल्पना करके देखिए एक कलीसिया जो यीशु मसीह अपने मुंह से उगलने पर है, एक कलीसिया या एक व्यक्ति। But we can see the heart of Jesus. He has got hope even for that church or even for that person. पर हम यीशु के हृदय को यहाँ देखते हैं कि यीशु के पास उस व्यक्ति, उस कलीसिया के लिए भी आशा है। We can see in verse 21. और हम Jesus 21 is वचन में telling to देखते हैं that person,
you can also be an overcomer. यीशु मसीह, हम 21 वचन में देखते हैं, यीशु मसीह उस व्यक्ति को कहता है कि तू भी जयवंत हो सकता है। I will grant you to sit with me on the throne, and as I overcome, you can also overcome. जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। See, that's a tremendous comfort. God will never let us go. ये अद्भुत सांत्वना है हमारे लिए कि परमेश्वर हमें कभी छोड़ेगा नहीं। He is all the time after us to make us overcomers. वो निरंतर हमारे पीछे है ताकि वो हमें जयवंत बनाए। We can see how that process is. That is also beautifully written here. और हम देख सकते हैं कि ये प्रक्रिया कैसे होती है, ये भी यहाँ बहुत सुंदरता से उसका वर्णन किया गया है। First of all, here is written the reason why Jesus is about to spat that person out of the mouth is, और सबसे पहले तो यहाँ वो कारण दिया गया है क्यों यीशु मसीह उस व्यक्ति, उस कलीसिया को मुंह से उगलने पर था। verse 17, the reason is because that person is telling, I am rich, have become wealthy and need of nothing. और 17 वचन में वो व्यक्ति कहता है कि मैं धनी हूं, मैं धनवान हो गया हूं और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं। See, I want to tell you that is a terrible position to take in a Christian life. मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये बहुत ही बुरी एक मनोभावना है, एक बुरा रवैया है जो अपने मसीह जीवन में हम ले सकते हैं। See, when we say I am all right, I have no problem, I am quite okay, I am quite rich, I am wealthy, I am need of nothing, that's a terrible position to come to. जब मैं कहने लगता हूं कि मैं तो ठीक हूं, मेरे साथ कोई समस्या नहीं है, मैं काफी धनवान हूं, मैं काफी अमीर हूं, मुझे किसी बात की आवश्यकता नहीं, ये बहुत ही एक भयंकर स्थान है जहां हम आ सकते हैं। But the Holy Spirit is telling you don't know that you are wretched, miserable, poor, blind and naked. और पवित्र आत्मा कहता है तू ये नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। He is telling, if you really want to be rich, I've got a solution to you. वो कहता है अगर तू वास्तविकता में धनवान होना चाहता है तो मेरे पास तेरे लिए एक हल है। You have to buy from me gold. तुझे मुझसे ताया हुआ सोना खरीदना पड़ेगा। You know, gold is purified by constantly putting in the fire, and as it goes through that process, its value increases. और सोना जो है वो निरंतर अग्नि में डालकर ताया जाता है और जैसे जैसे वो उस प्रक्रिया से गुजरता है उसका जो मूल्य है वो बढ़ते रहता है। And what I have to buy it, और मुझे वो खरीदना है। and what I have to sell is my own self life. और मुझे उसके बदले में क्या बेचना होगा? मेरा अपना स्वयं का, खुद ही का जीवन। And then it's written, I have to buy white garments. और फिर लिखा है कि मुझे उससे श्वेत वस्त्र ले लेने हैं। And white garments is that justification from the Father. और श्वेत वस्त्र वो धर्मी ठहराया जाना है पिता के द्वारा। For that, I have to admit that I'm naked and I don't have anything. I'm a wretched person. उसके लिए मुझे मान लेना होगा कि मैं नंगा हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं एक बिल्कुल अभागा व्यक्ति हूं। And to get that, it's written about that eye salve to open my eyes to really see as God sees. और मुझे अपने आंखों में लगाने के लिए वो सूरमा खरीदना होगा जो जिससे मैं वैसे देख पाऊं जैसे परमेश्वर चीजों को देखता है। For that, I have to admit that I'm a blind person. उसके लिए मुझे ये मान लेना होगा कि मैं एक अंधा व्यक्ति हूं। That is, we see in verse 19, be zealous and repent. और हम 19 वचन में देखते हैं कि सरगर्म हो और मन फिरा। That is the first step that I have to take. Be zealous and repent of all these terrible attitudes. ये पहला कदम है जो मुझे उठाना होगा कि मुझे सरगर्म होना होगा और मन फिराना होगा इन सारे जो मेरे गलत रवैये हैं उनसे। And then we can see this wonderful verse in verse 20. Jesus is telling, I am standing and knocking at your door. और फिर हम 20 वचन में इस अद्भुत वचन को देखते हैं जहां यीशु कहता है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। And if anyone hears, and then I'll come in. If he opens the door, I'll come in and I'll dine with him and he with me. यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। See, that is a beautiful picture of fellowship. ये संगति का एक अद्भुत चित्र है। I want to tell you that
that is the only way we can become overcomers. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये इकलौता मार्ग है जिससे हम जयवंत हो सकते हैं, And that is possible only after true, genuine repentance. और ये केवल सच्चे वास्तविक मन फिराव के बाद ही संभव है। We see that Jesus is telling you, buy from me this and repent properly, then I can come to you and we can have wonderful fellowship with one another. और हम देखते हैं कि यीशु कहता है कि तुझे इन बातों को मुझसे खरीदना होगा और अच्छे से मन फिराना होगा, तब मैं आकर तेरे पास आऊंगा और हम अद्भुत संगति कर पाएंगे। This fellowship is the thing that gives me the strength, as we have seen earlier, the life from God to be an overcomer. और ये संगति ही है जो मुझे सामर्थ प्रदान करती है, जैसे हमने शुरुआत में देखा, जिसके द्वारा हम जयवंत हो सकेंगे। And we see in the last verse 22, Holy Spirit is telling, he who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. और हम आखिरी वचन 22 वचन में देखते हैं, पवित्र आत्मा कहता है जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। I want to tell you, all of us have got opportunity to come to this life of fellowship. मैं आपको कहना चाहता हूँ कि हम सबके पास ये मौका है कि हम इस अद्भुत संगति के जीवन में प्रवेश करें, And through that to be an overcomer. उसके द्वारा हम जयवंत हो। We can see another verse which blessed my heart so much. We can see in Isaiah chapter 40. और एक और वचन जिसने मेरे हृदय को बहुत आशीषित किया, हम उसे देख सकते हैं, यशायाह उसका 40 अध्याय। We can see verse 30. It's written, the youth, maybe you can see from little earlier, verse 29 onwards, he gives strength to the weary, and to him who lacks might he increases power. और 29 brother 29 to 31. ओके, यशायाह 40 29 से 31 वचन, वो थके हुओं को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है। तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। See, there's a very wonderful portion. और ये एक अद्भुत ऐसे वचन है। It's written of an eagle. और यहाँ एक उकाब के विषय में लिखा गया है। What the Holy Spirit is telling is, the person who has got, who waits on the Lord, such a person will get strength to become like an eagle. और पवित्र आत्मा कहता है जो व्यक्ति परमेश्वर की बाट जो है उसका इंतजार करेगा, ऐसे व्यक्ति ऐसा बल पाएंगे प्रभु की ओर से कि वे उकाब के समान उड़ने पाएंगे। Just think of an eagle. You put a mountain before an eagle, it can fly over it. और एक उकाब के विषय में सोचकर देखिए, उसके सामने एक बड़ा पहाड़ रख दीजिए, वो उस पहाड़ के भी ऊपर उड़ सकता है। You put 10 mountains before it, it will fly over everything. उसके सामने आप 10 पहाड़ रख दीजिए, वो सारे पहाड़ों को पार कर उड़ सकता है। So God can make us like an eagle. That's a tremendous promise. और परमेश्वर हमें एक उकाब के समान बना सकता है, ये एक अद्भुत वायदा है, प्रतिज्ञा है। What is the secret? और इसका रहस्य क्या है? The secret is, he who waits on the Lord, he will get new strength. He can mount up like an eagle. रहस्य ये है कि जो प्रभु की बाट जोहता है वो नया बल प्राप्त करेगा, वो उकाबों के समान उड़ेगा। Now a question comes. What is the meaning of waiting on the Lord? अब एक प्रश्न आता है कि परमेश्वर की बाट जोहना, प्रभु की का इंतजार करना, इसका मतलब क्या है? I was thinking about for many years. What is the meaning of waiting on the Lord? I always used to get confused. और मैंने कई वर्षों तक मैं सोचता था कि प्रभु की बाट जोना, उस पर इंतजार करना, इसका मतलब क्या है? मैं निरंतर दुविधा में पड़ता था कि इसका अर्थ क्या होगा। Then I got the answer. तब उसके बाद मुझे उत्तर मिला। See, we have to remember all these chapter divisions came much later. Actually, this is a continuous letter which Isaiah wrote. और हमें इस बात को याद रखना है कि बाइबल में ये जो अध्याय अलग किए गए हैं ये बहुत बाद में आया, पर यशायाह ने जब इस पुस्तक को लिखा, ये जो विभाजन है ये बहुत बाद में आए। यशायाह ने तो एक ही पत्री मानो पूरी लिखी थी। What is waiting on the Lord is actually written in verse
chapter 41 verse 1. प्रभु की बाट जोना क्या है, ये वास्तविकता में यशाया 41 उसके पहले वचन में लिखा गया है। It's written, coastland, listen to me in silence and let the people gain new strength. और यहाँ लिखा है कि हे द्वीपों, मेरे सामने चुप रहो, और इंग्लिश में लिखा है मेरे सामने चुप रहकर सुनो, देश देश के लोग नया बल प्राप्त करें। So there is written, what is the meaning of waiting on the Lord? It is to listen to God and sit before him in silence. और वहां लिखा है कि प्रभु की बाट जोने का क्या मतलब है कि हम परमेश्वर को सुने और उसके सामने चुपचाप बैठे। See, that is what Jesus was doing when he used to go to the mountains on nights. और यही यीशु किया करता था जब वो रात में पहाड़ों पर जाया करता था। That was what he was doing all the time. He was before the Father in silence, saying, Lord, Father, just speak to me. I want to have fellowship with you. और वो निरंतर यही कहता था कि वो पिता के सामने बैठता था और कहता था, पिता प्रभु तू मुझसे बात कर, मैं तुझसे संगति चाहता हूँ। And it's written, such people will gain new strength. और वहां लिखा है कि ऐसे लोग नया बल प्राप्त करेंगे। I want to tell you, there's a tremendous promise. Such people can become like an eagle. मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये एक अद्भुत वायदा है, ऐसे लोग एक उकाब के समान बन सकते हैं। See, we may see a tremendous mountain before us, and if we are ready to wait before God like this in silence, listening to the Father, I'll tell you, God, that is fellowship with the Father. God will make us, it's not our strength, God will make us like eagles. हम शायद अपने सामने एक बड़ा पहाड़ देखते हैं, पर अगर हम चुपचाप परमेश्वर को सुनते हुए, परमेश्वर के से सुनते हुए अगर हम रुकेंगे, तो यही है वास्तविक परमेश्वर के साथ संगति, और फिर हम अपने सामर्थ्य में नहीं बल्कि परमेश्वर हमें उकाब बनाएगा। We can see this wonderful portion in John chapter 15. All of us know that. और यूहन्ना 15 में एक अद्भुत वचन है, हम सब इसे जानते हैं। The picture of a branch in a tree, in a vine. और एक दाखलता के अंदर जो डाली होती है उसका ये चित्र है। See, just think of we may not have seen vines. Maybe we all have seen mango trees, branch of a mango tree. और शायद हम में से हम लोग दाखलता नहीं देखी होगी, पर हम सबने आम के पेड़ को देखा है। आम की किसी डाली के विषय में सोचिए। See, just think, do you think that branch is training and standing on its head to make fruit or something? No, it's an effortless thing. It just gets connected to that tree, and that sap flows to that branches and fruit comes. और क्या आपको लगता है कि वो डाली बड़ा संघर्ष करती है अपने सिर पर, वो बहुत सोच रही है कि कैसे मैं इस फल को उत्पन्न करूं? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसके लिए तो बिल्कुल ये एक सहज सी बात है। वो केवल उस पेड़ से जुड़ी हुई होती है और पेड़ से वो जो पोषण तत्व आते हैं उसके अंदर बहते हैं और उसके द्वारा फल आता है। Okay, now let's say, we can say like this, how that branch can become an unselfish. See, one of the fruit is unselfishness. और अब हम देख सकते हैं कि कैसे वो जो एक फल जो है वो है स्वार्थी न होना। How we can become an unselfish person? कैसे हम एक निस्वार्थ व्यक्ति बन सकते हैं? The only thing that branch does is, it is connected to that tree. Sap flows to that branch. Sap is a picture of Holy Spirit. There is a continuous flow of Holy Spirit into me, and it makes me an unselfish person, provided, as we heard today, I try to live constantly in that fellowship with the Father. वो डाली केवल उस दाखलता में, उस पेड़ में बनी रहती है, और वो जो पोषण तत्व है उसके द्वारा बहकर उस डाली में आते हैं, और वो पोषण तत्व पवित्र आत्मा को दर्शाते हैं। पवित्र आत्मा आता है और मेरे अंदर उस फल को उत्पन्न करेगा, अगर जैसे हमने आज सुना, मैं पिता के साथ संगति में बना रहा तो। See, many times we see anger or sexual sin as such a big sin.
कई बार हम गुस्सा या जो लैंगिक पाप है, यौन संबंध पाप है, उसको हम एक बड़े पाप के समान देखते हैं, or unforgiving attitude or bitterness, या लोगों को all these different things. क्षमा न करने का रवैया या कड़वाहट रखना, ये सारी अलग अलग बातें, These are like mountains before us. ये हमारे सामने पहाड़ों के समान है। But the great thing is that God can make us an eagle. पर महान बात यह है कि परमेश्वर हमें एक उकाब बना सकता है, Not because I am great or anything, but because He is great. He can make me like an eagle. इसलिए नहीं क्योंकि मैं महान हूं या मैं कोई विशेष व्यक्ति हूं, पर वो महान है, वो मुझे एक उकाब बना सकता है। Provided as we heard, I live in a fellowship with the Father all the time. अगर जैसे हमने सुना, अगर मैं पिता के साथ संगति में निरंतर बना रहता हूं, तो I want to tell you that is something which is so close to my heart, and I want to live such a Christian life. मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये एक बात मेरे हृदय के बहुत ही नजदीक है और मैं ऐसा मसीही जीवन जीना चाहता हूँ। We know that, maybe with this I'll close. We see in Luke chapter 10 that example of Martha and Mary. और लूका 10 में हम मार्था और मरियम के उदाहरण को देखते हैं। We know that Mary was sitting at the feet of Jesus, fellowshipping with Jesus. और हम जानते हैं कि मरियम जो है वो यीशु मसीह के चरणों में बैठी थी और वो यीशु से संगति कर रही थी। Martha was busy preparing food. We can say she was doing ministry for the Lord. और मार्था जो थी वो भोजन बनाने में व्यस्त थी। हम कह सकते हैं कि वो प्रभु के लिए सेवकाई कर रही थी। And she came with a complaint to Jesus Christ. और वो यीशु के पास एक शिकायत लेकर आती है। And verse 41, Luke 10:41, Jesus is telling, Martha, Martha, you're worried and bothered about so many things. I believe that is a word that Holy Spirit tells to many of us. I know He has spoken to me so many times. Sam, you're bothered and worried about so many things. और लूका 10:41 में प्रभु ने उससे कहा, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है। और ये ऐसा वचन है जो कई बार प्रभु हमसे कहता है। मैं जानता हूं, मुझसे प्रभु ने कई बार कहा है कि सैम, तू बहुत बातों के लिए चिंता करता और घबराता है। But one thing is necessary. पर एक बात आवश्यक है। Just listen to that voice. Holy Spirit is telling one thing is necessary in our life. केवल इस आवाज को सुने कि पवित्र आत्मा हमसे कह रहा है कि एक ही चीज हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है, आवश्यक है। One thing is necessary. एक ही बात आवश्यक है। And that is what Mary has chosen. और वो है जो मरियम ने चुन लिया है। To live and live in fellowship with Jesus. कि हम जिए और यीशु के साथ संगति में जिए। I read the book called Practicing the Presence of God by Lawrence. और मैंने एक किताब पढ़ी थी जिसका नाम था परमेश्वर की उपस्थिति का उसका मानो एक प्रैक्टिस करना, अभ्यास करना। लॉरेंस नाम के एक व्यक्ति ने लिखा था। Actually, he lived almost 300 years ago. He was a cook in a monastery. He was a Catholic, in fact. और शायद 300 वर्ष पहले वो जीता था और वो खाना बनाने वाला एक बावर्ची था एक मोनास्ट्री में। वो कैथलिक था। Actually, that time Protestant movement actually did not even start. और उस समय जो प्रोटेस्टेंट ये जो मूवमेंट थी, इसका शुरुआत भी नहीं हुआ था। He was a wonderful believer. पर वो एक अद्भुत विश्वासी था। He was an illiterate person. वो अनपढ़ था। And he learned this principle of all the time living in that fellowship with the Father. और वो इस सिद्धांत को सीख गया कि निरंतर वो पिता के संगति में जिए। He became such a strong Christian and a tremendous help to so many people. वो इतना एक मजबूत बलवंत मसीह बन गया और कई लोगों के लिए अद्भुत सहायता बना। What he used to tell, one thing that strikes me so much is, what he says is, I enjoy equal fellowship with the Father when I take part in the bread and wine in the church, and the same fellowship I enjoy when I wash vessels in the monastery, when I wash vessels of other people in the monastery. और एक चीज जो वो कहता था, जिससे मैं बहुत आशीषित हुआ हूँ, वो कहता है कि मैं परमेश्वर के संगति का उतना ही आनंद उठाता हूँ जब मैं
उस प्रभु भोज में, प्रभु मेज में हिस्सा लेता हूं और उसके संगति का उतना ही आनंद मैं तब भी उठाता हूं जब मैं लोगों के बर्तन धोया करता हूं। He's saying in both times, my fellowship with the Lord is equal and my joy is equal. और वो कहता है And full. इन दोनों ही परिस्थितियों में प्रभु के साथ मेरी संगति समान है, मेरा आनंद समान है। He is a person who learned what is to be 24/7 in fellowship with the Father. वो एक व्यक्ति था जो इस बात को सीख गया कि 24 घंटे 7 दिन हफ्ते के कैसे हम पिता के संगति में रहे। I want to again remind you what I said right at the beginning. मैं आपको फिर एक बार याद दिलाना चाहूंगा जो मैंने बिल्कुल शुरुआत में कहा था। We live by rule book, will become cold, lukewarm Christians. अगर हम एक नियमों के किताब के द्वारा ही जीवित रहेंगे, जीने लगेंगे, तो हम ठंडे और गुनगुने मसीही बन जाएंगे। What makes us vibrant, enthusiastic Christians is to learn to live in the fellowship with the Father. जो हमें जोशीला और उत्साही मसीही बनाता है वो ये है कि हम पिता के साथ संगति में जीना सीख ले। And we can all come to such a life. और हम सब ऐसे जीवन में प्रवेश कर सकते हैं। That is what I desire the most, to live like that. और मेरे जीवन में यही एक मेरी लालसा है कि मैं ऐसा जीऊं। I want to encourage all of you. Let's come to such a life. मैं आप सबको प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि आइए हम सब ऐसे जीवन में आ जाए।